Good morning, sir. Good morning. Sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good Good morning. morning. Good morning, ठीक है. sir. Have you done the homework? Yes, sir. क्या था homework बोलो? The ohms law and resistors in series वो डायग्राम के साथ लिखने बोला था आपने. Okay. Draw किया आपने diagram? Yes, sir. Okay. Now give the next heading resistors in parallel. लिखो next heading resistors in parallel. Resistors in parallel. Resistors in parallel. हो गया? Yes, sir. Check the diagram here. Resistors in parallel. Diagram देखो. See how are the resistors connected? देखो, this is R1 is the first resistors, R2 and R3. The three resistors are connected in parallel. इसका मतलब they are connected between two common point X and Y. R1, the 2 points of R1 is X and Y. The 2 points of R2 is also X and Y. R3 X and Y. So these resistors are said to be connected in parallel. Now the terminals X is connected to the positive terminal of the battery and the terminal Y is connected to the negative terminal of the battery. A switch is connected and ammeter is connected. Ammeter measures current, बराबर है ना? The current flowing through this circuit is measured by ammeter and the potential difference between the between the terminal XY is measured by using voltmeter. So voltmeter measures the potential difference. So resistors in parallel, देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने. Resistors are said to be connected in parallel when their ends are connected between two common points. So here the ends of R1, R2 and R3 are connected between two common points. Yes or no? Yes. Which are the common points? Which are the common points of R1, R2 and R3? R1, R2 और R3 के कॉमन पॉइंट कौन से हैं? Middle. कॉमन पॉइंट R1, R2 एंड R3 ये तीनों रेजिस्टर कौन से दो कॉमन पॉइंट में कनेक्ट है? अरे X एंड Y ना, X एंड Y ना, ये और नो? Yes. क्या कर रहे हैं आप लोग? सुन रहे सब लोग? अरे R1, R2 and R3, the three resistors are connected between two common point X and Y. दिख नहीं रहे आप लोगों को X and Y common points? दिख रहे हैं ना? Yes, sir. So when the resistors are connected between two common points, the arrangement is called resistors in parallel. Got it now? So as shown in the figure, R1, R2 and R3 are connected in two common points. यहाँ पे C and D लिखा, it should be X and Y. Common point X and I should write here Y. हो गया? X. तो देखो यहाँ पे. So as shown in the figure, R1, R2 and R3 are connected in common point XY. Now, V is the potential difference. Suppose the potential difference between these 2 points XY is V. कितना है potential difference ये दोनों point में? कितना है potential difference ये दोनों point में? V कितना है? V. V is the potential difference between these 2 points.
let I1, I2 and I3 be the current flowing through R1, R2 and R3. देखो यहाँ पे the current flowing through R1 is I1, the current flowing through R2 is I2, the current through R3 is R3. So I1 is what? What is I1? What is I1? Resistor 1. अरे यार I1 R1 रेजिस्टेंस है, मैं I1 बोल रहा हूं. I1 is the current through R1. Getting it? Yes. Yes. R1 में से जो करंट जा रहा है वो I1 है. इसी तरह से जो करंट R2 में से जा रहा है वो I2 है, और जो करंट R3 में से जा रहा है I3 है, और टोटल करंट है I. So if the total current is measured, then it is observed that I is equal to I1 plus I2 plus I3. यदि हमने टोटल करंट मेजर किया, टोटल करंट के लिए हमने I लेटर यूज किया. If the total current measured, then I is equal to I1 plus 2 plus I3. Take this screenshot. हो गया? ये भी लीजिए. Done, sir. हाँ. Now आगे देखो. By using the अभी RP, P for parallel, be the effective resistance between the point C and D. यहाँ पे C के बजाय मुझे X लिखना है. Between the point X and Y. तो देखो यहाँ पे RP is the effective resistance between X and Y. Then according to Ohm's law, effective resistance का मतलब मैंने क्या कल बोला था. effective resistance का मतलब, effective resistance का मतलब क्या होता है? अरे कल मैंने बोला था ना, इफेक्टिव रेजिस्टर मतलब है ये जो तीनों रेजिस्टर्स है. यहाँ पे देखो, ये जो तीनों रेजिस्टर है, यदि मैं वो रिप्लेस करता हूं और उसके जगह पे एक ही रेजिस्टर जो कनेक्ट करता हूं, जो ये तीनों का इफेक्ट पैदा करेगा, देन दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव रेजिस्टर. हाँ, अरे इफेक्टिव का मतलब ये तीनों रेजिस्टर का इफेक्ट जो प्रोड्यूस करेगा, दैट इफेक्टिव रेजिस्टर्स. इसका मतलब ये मैंने तीनों रेजिस्टर्स हटा दिए और उसके जगह पे एक ही रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया जो ये तीनों का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, तो उसे बोलेंगे हम इफेक्टिव रेजिस्टर. सो मैंने एज्यूम क्या कर दिया, R1, R2 और R3 ये तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टर्स है RP. Then by Ohm's law, what is Ohm's law? Tell me Ohm's law. What is Ohm's law? Do you know the Ohm's law? Formula for Ohm's law बोलो. अभी आपने स्टडी किया है ना? आपने स्टडी किया तो फॉर्मूला फॉर Ohm's law क्या था? Ohm's law के लिए फॉर्मूला क्या था? बोलो, आपने स्टडी किया है, बोलो. 1 volt upon 1 ampere is equals to. नहीं, Ohm's law का फॉर्मूला V is equal to IR था ना? Yes. हमने देखा कि नहीं? V is equal to IR. Yes. V is equal to IR. तो बोलो इस फॉर्मूला से I बराबर क्या रहेगा रे? जरा पेन देते हैं. यदि V is equal to IR, ये जो फॉर्मूला है देखो यहाँ पे, ये है ओम्स लॉ के लिए फॉर्मूला. V is equal to IR. V is equal to IR. From this formula, can I write I is equal to V by R? मैंने ये I एक साइड में रख दिया तो आ गया V by R. समझ रहे यहाँ पे? Instead of I wrote here RP. मैं यहाँ पे RP लिखा है मैंने, क्योंकि पैरेलल है इसलिए RP. तो ये देखो,
यही मैंने लिखा है, I इज इक्वल टू V अपॉन RP, I इज इक्वल टू V अपॉन RP। सो I1 क्या होगा, V अपॉन R1, I2 क्या होगा, V अपॉन R2, I3 क्या होगा, V अपॉन R3। ये देखो यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। V इज इक्वल टू IR, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये क्लियर है। I इज इक्वल टू V अपॉन R, मैंने RP सिंबॉलिकली लिखा है, RP। सो इसी तरह से हम लिखेंगे I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 लिखेंगे V अपॉन R2, I3 लिखेंगे V अपॉन R3। अभी ये सब वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में डालते हैं। इक्वेशन 1 कहाँ है, ये इक्वेशन 1 देखो, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है इक्वेशन 1। यहाँ पे वैल्यूज डालते हम लोग, चलो। सो I1 था V अपॉन RP, I था V अपॉन RP, I1 है V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से V कॉमन लो, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये है आपके लिए V अपॉन RP इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से V कॉमन आ सकता है, देखो यहाँ पे मैंने V कॉमन निकाल रहा हूँ। सो V अपॉन RP इज इक्वल टू V, देखो मैंने क्या किया, V कॉमन यदि ले लिया ना तो ब्रैकेट में रहता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यदि हमने V कॉमन ले लिया तो अभी दोनों साइड का V कैंसिल हो गया, ये V और ये V कैंसिल होता है, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा 1 अपॉन RP, यही मिलेगा। देखो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यदि VV कैंसिल, दोनों साइड का VV कैंसिल हो गया तो आपको मिलता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही मैंने लिखा है लास्ट में, देखो लास्ट देखो। सो 1 अपॉन, यहाँ पे देखो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यदि मैं n रेजिस्टर कनेक्ट करता हूँ, n का मतलब होता है 10 रेजिस्टर, 20, 50, 100, कितने ही। So if n number of resistors are connected, then I will get 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon 3 plus dash 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 plus 1 upon Rn. Take the screenshot. हो गया? Yes. Okay. Yes, sir. Yes, sir. And now the last point, the characteristics of रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। यदि हम रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो उनके गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छी बातें कौन सी है, देखो यहाँ पे नंबर 1, द इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इनवर्सेस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ये देखो यहाँ पे क्या बोल, इसको 1 अपॉन RP, इसे बोलते हैं हम इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। 1 अपॉन RP को ही क्या बोलते हैं हम, इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये बोलो रे, चलो आप यदि मालूम है तो 1 अपॉन 10 का इनवर्स क्या होता है रे, बोलो 1 अपॉन 10 का इनवर्स क्या होता है। 1 upon Rn. अरे क्या बोल रहा है, 1 अपॉन 10 का इनवर्स क्या है, मालूम नहीं है, मैथ सही है। ये होता है 10, ये होता है 10 रेज़ टू माइनस 1। 1 अपॉन 10 मतलब 10 रेज़ टू माइनस 1, इसको इनवर्स बोलते हैं। चलो मालूम नहीं तो छोड़ दो। यहाँ पे क्या बोलना है हमने, 1 अपॉन RP, हाउ टू रीड 1 अपॉन RP इज इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। 1 अपॉन RP को हमें कैसे पढ़ना है, इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये ध्यान में दो, अभी मैंने क्या बोला, 1 अपॉन RP मतलब इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ, यहाँ पे सम क्या है, प्लस प्लस है ना, इज द सम ऑफ इनवर्सेस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स।
हर एक रेजिस्टेंस का मैंने इनवर्स ले लिया और उसकी यदि एडिशंस कर दी तो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस का इनवर्स मिलता है। ये देखो यहाँ पे बाबा नो जरा ध्यान दिया, इकडे बघा, ये 1/RP है कि नहीं, is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/RP. तो how to read this? in ये RP होता है effective resistance, so the inverse of effective resistance, how to read this? Inverse of effective resistance is the sum of inverses of individual resistance. हर एक रेजिस्टेंस का मैं यदि इनवर्स लेता हूं और उसकी एडिशंस करता हूं तो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस का इनवर्स मिलेगा। इसका मतलब ये छोड़ दो अभी। तो इसी तरह से ये फर्स्ट पॉइंट है। आगे देखो, आगे क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अब इतना देखो, यहाँ पे देखो, the total current I is the total current. The total current flowing through the circuit, is it not the sum of all the current flowing through individual circuit? अरे यहाँ पे जो टोटल करंट है, टोटल करंट I है ना, टोटल करंट I, is it not equal to I1 plus I2 plus I3? yes or no? Yes, sir. यदि मैं Yes, I1 sir. यदि मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 करता हूं तो मुझे I मिलता है ना। इसका मतलब द टोटल करंट इज द सम ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ये सर्किट में जो करंट जा रहे हैं ना, उसका सबका यदि मैं एडिशंस करता हूं तो मुझे टोटल करंट मिलता है। इसका मतलब ये है। आगे थर्ड वन, the potential difference across the end of resistor is the same। ये भी देखो, potential difference across each resistor, is it same or different? ये तीनों के अक्रॉस, R1 के अक्रॉस, R2 के अक्रॉस, R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है कि नहीं? Same. Yes. सेम है, क्योंकि वो तीनों हम दो कॉमन पॉइंट में उसको कनेक्ट कर दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। 4, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन। अभी देखो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टर जो है ना 1/RP, हेलो हेलो देखो यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस RP ये सबसे R1 से भी छोटा होता है, R2 से भी छोटा होता है और R3 से भी छोटा होता है। इसका मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यदि हम रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसलिए यदि आपको सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना है तो रेजिस्टर आपको पैरेलल कनेक्ट करने पड़ेंगे। आपके घर में जो सब रेजिस्टर्स हैं, फैन रेजिस्टर्स हैं, ट्यूबलाइट है, एसी है, फ्रिज है, ये सब जो रेजिस्टर्स है ना वो एक दूसरे को पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, इसलिए टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाता है। कल मैंने बोला था यदि हम सीरीज में कनेक्ट करते थे ना तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता था और वायर्स हीट्स हो जाते थे, आग लगने की संभावना होती थी। लेकिन हमारे घर में वो सब पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल कनेक्ट किए हैं, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कम हो जाता है एंड करंट फ्लोस इजीली। टेक दिस स्क्रीनशॉट। ये आपको जो मैं दे रहा हूँ वो लर्न करना है। अभी ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर
सर पेज नंबर 41 ना। पेज नंबर 45 ओपन करो, पेज नंबर 45। यस सर। सर एक्सरसाइज पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 9 ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। यस सर। हाँ नेहा रीड द क्वेश्चन नंबर 9 का ए रीड कर, नेहा पाटिल। Yes, sir. हाँ रीड द क्वेश्चन ए। The resistance of the 1 meter long माइक्रोम वायर wire is 6 ओहम, 6 ohm. ओहम, वो 6 सिंबल है ohm. ओहम के लिए। हाँ If we reduce the length of the wire to 70 centimeter, what will its will be the resistance resistance be? be? लिखो एवरीवन राइट डाउन। आपको हर एक को लिखना है, नोटबुक में लिखना है। लिखो क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम 1। क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉब्लम 1 लिखो। गिवन, राइट एवरीवन, गिवन लिखना है आप लोगों को। गिवन Given L1 is equal to 1 meter, L2 is equal to 70 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में करते हैं 0.7 मीटर। देखो यहाँ पे गिवन लिखो आप लोग। गिवन, पहले गिवन लिखना है आपको। लेंथ दिए है ना आपको, 2 वायर दिए, 2 वायर्स। L1 लेंथ, L1 का मतलब द फर्स्ट लेंथ 1 मीटर है। L2 सेकंड लेंथ 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करो, आपको मिलता है 0.7 मीटर। यदि ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होना है। लिखा आपने? L1 लिखा, L2 लिखा? Yes, sir. L1 L2 लिखा हर एक ने? ठीक है। अभी क्या दिया? और एक दिया है 6 ओहम, ये R1 है। 6 ओहम R1 और 2 फाइंड R2। देखो R1 दिया है 6 ओहम। पहले वायर का रेजिस्टेंस 6 ओहम है, तो दूसरे वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। R2 इज टू फाइंड R2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हो गया? लिखा आप लोगों ने? यस सर। हाँ अभी लिखना है फॉर्मूला आप लोगों को। फॉर्मूला लिखो। R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 बाय L1। फॉर्मूला लिखो। R2 बाय R1 इज इक्वल टू L2 बाय L1। लिखा? Yes, sir. अभी पुट द वैल्यूज, फाइंड योर आंसर। पुट द वैल्यूज, फाइंड R2। मम्मी उसको बुक दे दे। हो गया? पुट द वैल्यूज, फाइंड योर आंसर। पुट द वैल्यूज। R1 है 6, L2 है 0.7, L1 है 1। अभी 6 इसी यहाँ पे ट्रांसफर करो।
तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा यहाँ पे 6 7 42, एक डेसिमल पॉइंट बैक साइड, 6 7 42, एक डेसिमल पॉइंट बैक साइड ले लिया मैंने। हो गया? यस सर। ठीक है, अभी लोग क्वेश्चन Yes. नंबर सी, बी आपको सॉल्व करना नहीं है, बी सॉल्व करना नहीं है, डोंट वरी अबाउट बी। सी लो, सी कौन रीड करेगा? अश्विनी रीड कर सी, अश्विनी रीड कर सी। Yes, sir. If a charge of 420 C flows through सी a नहीं, सी conducting नहीं, सी wire, नहीं, उसे कुलोम बोलते हैं। सी कैसे बोला आपने? कुलोम बोलो। if a charge of 420 coulomb flows through a conducting wire in 5 minutes, what is the value of the current? लिखो लिखो, सी लिखो अभी, गिवन लिखो। चार्ज के लिए लेटर क्या है? विच इज द लेटर यूज फॉर चार्ज? क्यू। हाँ, Q इज इक्वल टू लिखो 420 कुलो, लिखो Q इज इक्वल टू 420 कुलो, Q इज इक्वल टू 420 कुलो। टाइम दिया है, T इज इक्वल टू 5 मिनट्स। T इज इक्वल टू 5 मिनट, 5 को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में लेंगे। हम टाइम हमेशा सेकंड में लेते हैं। ये हो गया 300 सेकंड, हो गया? Yes, sir. हाँ, अभी लिखना है आपको टू फाइंड। लिखो टू फाइंड, क्या क्या फाइंड आउट करना है? Value of current. करंट के लिए लेटर कौन सा है? करंट के लिए I. आई, लिखो टू फाइंड आई, टू फाइंड आई। हो गया? Yes, Yes, sir. sir. अभी फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला वेरी सिंपल। लिखो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। पुट द वैल्यूज एंड फाइंड योर आंसर। देखो यहाँ पे वैल्यूज देखो, मैंने 420 अपॉन 300 0 कट कर दिया, यहाँ पे 40 अपॉन 30 हो गया। 40 और 30 कॉमन डिविजन, उसका कॉमन डिविडर और क्या, कॉमन मल्टीपल फैक्टर, कॉमन मल्टीपल फैक्टर, ये कॉमन मल्टीपल फैक्टर 6 है ना। दोनों को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं? 6 7 are 42, 6 5 are 30, बराबर है? Yes, sir. हाँ, Yes. अभी 7 by 5 कितना आता है? 5 1s are 5, 2 रह गए, बन गए 20, so 5 4s are 20, 1.4 एम्पियर। हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, विल रीड द क्वेश्चन नंबर 1। आदित्य रीड क्वेश्चन नंबर 1। आदित्य, आदित्य रीड इट।
अरे आदित्य सुन रहा है तो? Yes, sir. अरे रीड द क्वेश्चन नंबर 1. आदित्य को सुनाई नहीं दे रहा है. करिश्मा कैन Sir, यू? can I read? हाँ read it. चलो read it. Question number 1. The accompanying figure shows some electrical appliances connected in a circuit in a house. Answer the following questions. A. By which method are the appliances connected? लिखो एक लिखो. क्वेश्चन नंबर 1 लिखो एवरीवन. क्वेश्चन नंबर 1. Sir, voice is breaking. My voice is breaking. A. Yes, Is sir. my voice cracking? नेहा मेरा वॉइस क्रैक हो रहा है? No, sir. No, sir. No, No sir. sir. हाँ No, sir.